SVM Sitamarhi. Contents are written. Chapter 12 Electricity. Topics are written. Good morning, Bhaiya and Bahan. Welcome in my physics class for standard 10. Subject physics, chapter 12 electricity, part 9. Today I would like to teach written topics in part 9. And I'll solve some numericals, then some homework. Now, what do you mean by electric energy? So भैया बहन, यहाँ आप लोग एक सर्किट देखते हैं, दिए हुआ है। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, कोई ना कोई वर्क करता होगा, किसी न किसी एनर्जी के कारण वर्क होता होगा, और देन कंटिन्यूज a current flows through the circuit. That means what? So energy is necessary. So today I discuss about electric energy. Electric energy means what? Definition is written. The work done by a source of electricity to maintain a current in an electric circuit. That means what? इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, वही तो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इट मीन्स कि वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जितना वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो let us consider AB is a conductor. Here V potential difference, W work, T time. Yes, then I electric current, and Q charge, unit positive charge. It means unit positive charge AB conductor through flow one into another end. You know, charge the carrier of electric current. It means that is electron is a carrier of electric current. So here at first we write W equal to V Q. No, W equal to VQ, and here we know I equal to Q by T, so Q equal to IT. Putting this value in equation 1, then equation 1 reduced to, then equation 1 gives us W equal to VIT. Very important. VIT. You know, work जितना होगा इसमें की इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा उतना ही वर्क होगा। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के पूरक है। वर्क मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो वी राइट हियर W equal to E.
means what? E equal to VIT. E equal to VIT. Important formula for learning electric power. Yes, so you understand what do you mean electric energy? जनरली आपसे पूछा जाए कि पावर क्या है, तो सीधा सीधा आप बतलाएंगे एनर्जी वर्क डन पर यूनिट टाइम, WIT, energy per unit time also. So here we learned, हम लोग सीख चुके हैं, we learned about electric energy. So means electric power means it is defined as the amount of electric energy consumed in a circuit per unit time. Amount of electric energy consumed in a circuit per unit time. Electric energy circuit per unit time. Electric energy circuit per unit time. Amount of electric energy consumed in a, it is defined as the amount of electric energy consumed in a circuit per unit time. Electric power means what? Amount of electric energy per unit time. No, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, सो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? तो एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए लेट अस कंसीडर ई इलेक्ट्रिक एनर्जी, ई इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यूरिंग टाइम, क्या कितने समय के लिए? तो टाइम हेयर टी. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी फाइंड पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू, वी फाइंड इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू P equal to WIT? No, means E by T. Okay. Here important result, P equal to E by T. Electric energy consumed in a circuit per unit time. So mathematically we define here P equal to E by T. No, P equal to E by T. So from this relation we find E equal to PT. This is very important. Electric energy equal to PT, electric power into time, because this relation generally used for finding electric energy. So E इक्वल टू पी टी रिलेशन, इसे अपने माइंड में रजिस्टर्ड कर ले, इक्वल टू पी टी. चलिए आगे हम लोग बात करते हैं. वी नो E इक्वल टू VIT. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 यार, तो ये इसे कह सकते हैं इक्वल टू पी टी. तो द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर equal to PT. V equal to IT, equation 3. तो then from equation 1 and 3 we get, यहाँ हम लोग बात करते हैं. तो from equation 1 and 3 we get, क्या फाइंड करेंगे? P इक्वल टू VIT बाय T मीन्स VI. एक फॉर्मूला हम लोग फाइंड किए,
P equal to VI. फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, यू नो रिलेशन V equal to IR, नो, तो V equal to IR used in equation 4, then equation 4 gives us P equal to IR into I, means I square R. P equal to I square R, no, equation 5 we write, then also we find V equal to IR, so I equal to, now V equal to IR, V equal to IR, so I equal to V by R, I equal to V by R, put the value in equation 5 and we find P equal to, from equation 5 we get, हम लोग फाइंड करेंगे P इक्वल टू V बाई आर स्क्वायर इंटू आर, सो V स्क्वायर बाई आर, ओके, आई स्क्वायर आर, तो V स्क्वायर बाई आर, D square by R also reactive power formula. So you see here reactive power formula, at first P equal to A by T and then P equal to VI, then P equal to I square R, P equal to V square by R. It means कि I equal to V by R, V by put V square R square 1 R cancelled, then we find V square by R, V square by R. So एक बॉक्स में हम लोग लिख लेते हैं रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला। जाने क्या मिल गया, फॉर्मूला मिला हम लोगों को, फॉर्मूला रिएक्टिव पावर का मिला। सो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R and V square by R. So important point here, VI formula used either parallel or series combination. VI used either parallel or series combination. I square R used series combination. V square by R used resistors are in parallel combination, because in parallel potential difference never distributed, in series electric current never distributed, so I square R used in series combination, V square by R used in parallel combination. So यहाँ हम लोग ये सीखे। यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट, SI यूनिट, so here just P equal to W by T या E by T, तो जूल by टाइम, जूल by सेकेंड, that means कि watt. Here also electric power, the unit of electric power is watt. तो watt represented by capital W से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो you know P equal to E by T, so here 1 watt equal to what? 1 watt equal to 1 joule per second. 1 joule by 1 second. No, that means we write 1 watt equal to 1 joule per second. यह हुआ हम लोगों का ये फॉर्मूला हुआ, ये यूनिट हुआ, ऐसा यूनिट हुआ 1 वाट 1 जूल बाय 1 सेकेंड। यूनिट के बारे में भी हम लोग जाने, कुछ बिग यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं। बिग यूनिट जो आपका है, बिग यूनिट देखिए, स्मॉल यूनिट, बिग यूनिट, तो जैसे किलोवाट, बिग यूनिट किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, तो 1 kW मीन्स 1 किलोवाट मीन्स 10 to power 3 वाट। फिर 1 MW मीन्स 1 मेगा watt means 10 to power 6 watt। 1 GW 1 gigawatt 10 to power 9 watt। So 1 horsepower HP, 1 HP means 1 horse power 746 watt। So some it here we learn, and so electric power हम लोग सीख चुके। इलेक्ट्रिक पावर वेरी सिंपल, इसका डेफिनेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम मीन्स E by TP इक्वल टू, इससे हम लोग ये फॉर्मूला 3 फाइंड किए, VI² बाई R। इलेक्ट्रिक बिल आप पेड करते हैं गवर्नमेंट को, आपको जानना चाहिए कि कैसे इलेक्ट्रिक बिलिंग किया जाता है और फाइंड किया जाता है, हम लोग चार्ज कैसे लगता है। तो इसीलिए एक यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कॉमर्शियल यूनिट नाम डाला गया है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर यह जो आपका है किलोवाट आवर। द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेल्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेल्स, द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेल्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द कंज्यूमर्स इन यूनिट्स। कुछ ना कुछ तो यूनिट्स होगा, तो इलेक्ट्रिक बिल का भी कोई ना कोई यूनिट होगा। इसीलिए ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सेल्स करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी किसको, कंज्यूमर्स, हम लोग को। तो उसके लिए कोई यूनिट्स चाहिए, वही यूनिट्स को कहा जाता है किलोवाट आवर। इट मीन्स कि द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेल्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द कंज्यूमर्स इन यूनिट्स, to the consumers to units is called kilowatt hour। किलोवाट आवर बोलते हैं। तो इससे सिंपल आपको लगता है, ये जो यहाँ देख रहे हैं आप किलोवाट, यहाँ आप जो देख रहे हैं किलोवाट, और ये जो टर्म है आवर, किलोवाट, यू अंडरस्टैंड इन इलेक्ट्रिक पावर kilowatt is the unit of power, hour is the unit of time। भले ही आवर में है, ऐसा मिनट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, लेकिन टाइम तो है। यह हमारा टाइम है, यह हमारा इलेक्ट्रिक पावर है। ये क्या हुआ
इलेक्ट्रिक पावर, दिस इज टाइम, यू नो इलेक्ट्रिक पावर मीन्स व्हाट, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसको T से, तो P इंटू टी क्या देता है भैया, P इंटू टी बहन, P इंटू टी क्या देता है, वही तो E देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो देता है, तो P इंटू टी, PT एनर्जी देता है। इसका मतलब है किलोवाट आवर, कभी भी भूल कर भी आप इसे पावर ना कहेंगे, ये गलती होती है, क्योंकि बार बार ये बोर्ड में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो गलती होती है। जब भी किलोवाट देखा, आवर देखिए या ना देखिए, सीधे कहते पावर का यूनिट है, नो, किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, भले ऐसा यूनिट नहीं है, एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है, जो कॉमर्शियल यूनिट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यूनिट तैयार किया गया है, उसको KWH बोलते हैं, उसे यूनिट भी कहा जाता है। तो इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रिक पावर है PT मिला, तो इससे हम डिफिनीशन दे सकते हैं। देखिए भैया कि 1 kW मीन्स होता है, अभी भी बात की 1000 वाट, नो, और 1000 वाट इट मीन्स कि 1 यूनिट की बात है, तो 1 kW को ये भी डिफाइन कर सकते हैं, 1000 वाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड इन 1 आवर। कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंस जैसे में आपका इलेक्ट्रिक हीटर की बात करते हैं, अगर 1000 वाट का यूज करता है 1 घंटा में, तो उसको हम लोग 1 kWh बोलते हैं, 1 यूनिट। इसका मतलब है 1 यूनिट एनर्जी उसने क्या किया कि 1 यूनिट एनर्जी उसने कंज्यूम किया, मतलब वह यूज किया। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक एप्लायंस, जैसे एग्जाम्पल लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर के द्वारा। तो यह जो 1 kW मीन्स 1000 वाट्स और PT मिला E=PT जो आपका है, तो डिफिनेशन वेरी सिंपल है कि 1000 वाट्स इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड इन 1 आवर बाय इलेक्ट्रिक एप्लायंस इज नोन एज KWH। इसको KWH बोलेंगे। तो ये यहाँ तक हम लोग समझे। तो इसमें एक रिलेशन आता है, रिलेशन आता है क्या कि 1 kWh, देखिए क्या मिलता है, 1 kWh इक्वल टू, यू नो, 1000 वाट आवर मीन्स व्हाट, 60 into 60 सेकेंड मीन्स 3630, ओके, ये WS। अब देखिए यहाँ पर वाट और सेकेंड है, यहाँ ध्यान देंगे WS वाट एंड सेकेंड। तो वाट एंड सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सो भी ध्यान दे दीजिए। तो यहाँ पर 3.6 into 10⁶ WS ये मिला, 1 kWh, नो। तो यहाँ हम लोग अब बात करते हैं, तो देखिए कि 1 W इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड होता है। सो 1 जूल इक्वल टू 1 WS। तो देखिए 1 WS होता है, क्या हम यूज कर सकते हैं कि 1 kWh इक्वल टू हम लोग यूज कर सकते हैं 3.6 into 10⁶ जूल। देखिए यह भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रिलेशन है। ये कभी कभी कहा जाता है कि टू कन्वर्ट kWh into जूल, तो इसका हम यूज कर सकते हैं 3.6 into 10⁶ जूल, या जूल कन्वर्ट करना हो kWh में, तो यहाँ हम इस रिलेशन को जरूर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सीखे हैं। बहुत सिंपल है, ये किलोवाट आपका पावर है, ये टाइम है, PT एनर्जी दिया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि KWH इज द यूनिट ऑफ एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह का कॉमर्शियल यूनिट किसके द्वारा यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा, या द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेल्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द कंज्यूमर्स इन नीड्स कॉल्ड KWH।
तो ये भी हम लोग समझ गए। टू न्यूमेरिकल्स, ओनली टू न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल, पावर ऑफ ए लैम्प 60 वाट, फाइंड द एनर्जी इन जूल्स कंज्यूम्ड बाय इट इन 1 सेकेंड। अब देखिए पावर, लैम्प का पावर दिया हुआ है, जूल निकालना क्या है, एनर्जी को जूल में निकालना है, कंज्यूम्ड बाय इट इन 1 सेकेंड। आप पढ़े हैं W वाट इंटू सेकेंड मीन्स जूल होता है, तुरंत हम लोग यूज किए हैं। 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। सो यहाँ W इंटू जूल, W इंटू S करेंगे तो जूल मिल जाएगा, जूल में निकालना है, बहुत सिंपल है, फाइंड द एनर्जी निकालना है। तो सॉल्यूशन हम क्वेश्चन जो 1 है, ये 1 का क्वेश्चन 1 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये सॉल्यूशन क्या गिवन है, पावर दी हुआ है, P दिया हुआ है 60 W, एनर्जी निकालना है, और टाइम दिया हुआ है, T दिया हुआ है 1 सेकेंड। यू नो, वी नो, हम लोग जानते हैं P इक्वल टू E बाई टी मीन्स E इक्वल टू पी टी। हम बताए थे इक्वल टू पी टी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ डाल देंगे सीधा 60 इंटू 1 मीन्स E इक्वल टू 60 जूल, क्योंकि W इंटू एस जूल जानते हैं आप, पहले भी हम बतलाए हैं। तो कितना आसान आप हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 वाट्स। देखिए रेटेड मीन्स वाट, यहाँ पावर की बात कर रहा है। ऑपरेट 6 आवर्स, कितना आवर्स, 6 आवर पर डे 6 आवर्स यूज करता है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 4.5 पर किलोवाट आवर। यहाँ कहा जा सकता था कि पर यूनिट्स निकालना है, नो, तो इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल है। अब ये सॉल्यूशन आप नोट किया फर्स्ट का, तो इसको मिटा देते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन आप देखिए, क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन इसका है कि हम लोगों को जो एनर्जी 30 डेज में kWh में निकाल लेना पड़ेगा, और उसको हम 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सिंपल यही इसका कंसेप्ट है कि kWh में एनर्जी को 30 डेज में निकाल लेंगे। एनर्जी 30 डेज का निकालना है, किस में, kWh में, जूल में नहीं, ध्यान देंगे। kWh में यूनिट होता है, kWh के बदले यूनिट्स भी लिखा जा सकता था। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए गिवन में दिया हुआ है P इक्वल टू 500 वाट, ओके। टाइम जो दिया हुआ है 6 आवर पर डे, एक दिन में 6 आवर यूज करता है, तो 30 डेज में कितना आवर्स हो गया। तो टाइम जो निकालना है 1 डे में 6 आवर्स यूज करता है, तो 6 आवर यहाँ पर डे है इनटू व्हाट 30 डेज करना पड़ेगा। अब देखिए पर डे, डे से डे कैंसिल, डे से डे कैंसिल, तो हमारा तो बच गया कितना, 6 आवर है, तो 6 इंटू 30 आवर यूज कर लेंगे, HOUR, तो 180 आवर सिंबल में यूज कर लिए। T इक्वल टू, देखिए E निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नो, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी तो निकालना पड़ेगा ना, तब ना पर kWh है, kWh क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, कॉमर्शियल यूनिट है ये। तो E इक्वल टू यू नो PT होता है, अब 500 इंटू 180, 85 जा 930 डाल देंगे। अब यहाँ WH मिला, ध्यान दीजिए, kWh में चेंज करना है, ओके, kWh है, किलो, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 90,000 बाय 1000
तो अब डाला जाएगा KWH। तो वेरी सिंपल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, मिल गया 90 KWH। फिर यहाँ का रहा है कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट मेन चीज यहाँ क्या निकालना है, कॉस्ट। कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। और कॉस्ट जो दिए हुआ है आपको ₹4.5 पर KWH। शो कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू टोटल, तो 90 इंटू 4.5 मीन्स 1 0 डालेंगे, डेसिमल 1 डिजिट है, तो मिल जाएगा कितना, RS 405 आंसर। कितना सिंपल। नो, तो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, सिंपल फाइंड कर सकते हैं। कुछ नहीं था, पावर P था, टाइम था, जो दिया हुआ था 6 आवर पर डे, 30 डेज तक यूज करता है, इसलिए टोटल टाइम जो निकाले हैं 6 आवर पर डे इंटू 30 डेज, तो आवर में चेंज हो गया, तो 180 आवर मिला। और उसके बाद इक्वल टू PT लो, बस P 500 ऑन 180 आवर, इसको यूज किया, KWH में चेंज किए, उसके बाद रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिए। हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सीख लिए हैं। भैया एंड बहन, आप लोग को इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और होमवर्क, इसका नोट्स सब PDF फाइल में भेज दिए हैं पहले। प्लीज़ आप लोग होमवर्क जरूर बनाएंगे PDF फाइल से। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड watching।